नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ ऋतु बोरा। स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं और आज का दिन न सिर्फ हमारे किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खास है। आज लोकसभा में मोदी सरकार पार्ट 2 का पहला आम बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बजट में हमारे ग्रामीण और किसानों के लिए क्या कुछ खास है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस बजट की हाईलाइट्स। I rise to present the budget for the year 2019-20. The first term of Honorable Prime Minister Narendra Modi led NDA government गांव, गरीब और किसान, मतलब गांव, गरीब और किसान केंद्र बिंदु है हमारे हर एक कार्यक्रम में। Honorable Prime Minister's two mega initiatives of Ujjwala Yojana and Saubhagya Yojana have transformed the lives of every rural family, dramatically improving ease of their living. अन्नदाता, ऊर्जादाता बनाने के लिए बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। Daring through cooperatives shall also be encouraged by creating infrastructure for cattle feed manufacturing, milk procurement, processing and marketing. Speaker sir, I place my appreciation for our farmers who have made India self-sufficient in pulses. दलहन के रेवोल्यूशन जो हमारे किसान ने किया है, पिछले 1.5 साल में किया है, उसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। Zero budget farming may not be a new thing. That is why I said we'll go back to basics. We need to replicate this innovative model. Some states have already tried somewhat. We need to replicate this innovative model through which, in a few states, farmers are already being trained in this practice. Steps such as this can help in doubling our farmers' income in time for our 75th year of independence. Committed to the agenda of sustainable development, 30,000 kilometers of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana roads have been built using green technology, waste plastic and cold mixed technology, thereby reducing the carbon footprint. With the changing economic scenario, it is important to upgrade roads connecting villages to the rural markets. For this, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Phase 3 is envisaged to upgrade 1,25,000 kilometers of road length over the next 5 years, with an estimated cost of 80,250 crores of rupees. All villages and almost 100% households across the country have been provided with electricity. A combination of efficient implementation and enthusiastic adoption has significantly improved access to energy for rural households. By 2022, the 75th year of Indian independence, I would like to assure the nation that every single rural family, except those who are unwilling to take the connection, Speaker sir, it's important to understand, except those who are unwilling to take the connection will have an electricity and a clean cooking facility. I rise to present the budget for the year 2019-20.
first term of Honorable Prime Minister Narendra Modi led NDA government, तो भी आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि बजट 2019 में क्या कुछ खास है हमारे किसानों के लिए। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कृषि स्टार्टअप। कृषि दर्शन के इस भाग में हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जिनकी कहानी से हमारे बाकी के किसान प्रभावित हो सकते हैं और इनकी तरह सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए कृषि स्टार्टअप में आज देखते हैं कुछ ऐसे ही सफल किसान की कहानी, जिनकी कहानी को देखकर आप भी प्रगतिशील किसान की राह में आगे बढ़ सकते हैं। खेती से मुनाफा कमाने की आज सभी किसान सोचते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि किसान हमेशा नई तकनीक के साथ खेती करे। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और हमें उस तकनीक के साथ हमेशा चलना चाहिए जिससे हमें फायदा हो। अमरूद की खेती से किसानों की किस्मत बदल रही है। आज हम आपको ऐसे ही किसान से रूबरू करेंगे जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ आधुनिक खेती को अपनाया। आज की कहानी केंद्रित है ऐसे ही एक युवा किसान शैलेंद्र सिंह रघुवंशी पर। कृषि के क्षेत्र में एक माध्यम मिला बागवानी, और उसमें भी अमरूद। तो फिर मैंने अपने 12 एकड़ के एरिया में अमरूद की खेती शुरू की। उसके लिए हम 4 से 5 प्रजाति के पौधे लखनऊ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर से ला करके अपने यहाँ लगाए, और फिर उसमें दूसरे साल से ही फलाना शुरू हुआ। तो 2007 में हम बाग लगाए, 2009 से हमको अच्छा फल मिलने लगा, जिससे अच्छी आमदनी भी होने लगी। हम बात कर रहे हैं वाराणसी जिले के ब्लॉक चौलापुर में रहने वाले किसान शैलेंद्र सिंह रघुवंशी की। दूरदर्शन किसान से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने परंपरागत खेती को न अपनाकर अमरूद की खेती की तरफ रुख किया। नतीजा ये है कि आज इनकी अलग पहचान है। और पौधे की कीमत सब मिलाकर के लगभग पूरा हमारा लगभग 2 लाख के आसपास खर्च हुआ था 12 एकड़ में, और ये हमको 2009 में ही लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए मुझे मिल गया। तो मेरा जो लागत था वो तो निकल गया। अब 2010 से मुझे प्रॉफिट उसमें होने लगी, तो वो हर साल फिर बढ़ती गई, और ये हुआ कि तीसरे साल से हमको 12 एकड़ के एरिया से 10 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष मुनाफा होने लगा। शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि साल 2007 में उन्होंने 12 एकड़ भूमि में अमरूद की खेती की शुरुआत की थी। शुरुआती समय में सिर्फ 4 से 5 प्रजातियों के पौधे ही खेत में लगाए थे। 2009 तक शैलेंद्र को अच्छे फल मिलने लगे। फिर क्या था, सफलता का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, और आज शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने अमरूद की खेती के साथ साथ 1600 वर्ग मीटर में नेट हाउस, 200 वर्ग मीटर में पॉली हाउस लगाया है, जहां वो उच्च गुणवत्ता के पौधों की नर्सरी तैयार करते हैं। जब हमारे बाग में फल आने लगा तो बाहर से भी, बाहर प्रदेशों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से भी कुछ किसान मेरे यहाँ देखने के लिए आए। तो सबकी शिकायत ये रहती थी कि हम लोगों को शुद्ध पौधा नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही एक नर्सरी अपने यहाँ स्थापित करूँ। तो फिर हम दोनों भाइयों ने मिलकर के एक नर्सरी 2011 में अपने यहाँ स्थापित किया, जिसमें लगभग 1700 स्क्वायर मीटर में एक नेट हाउस और 100 स्क्वायर मीटर में एक पॉली हाउस बना करके हम लोग इसको शुरुआत किए। और आज हमारे पास करीब 14 प्रजाति के अमरूद हैं, और जिसका मैं वेज ग्राफ्ट तकनीकी से, वी ग्राफ्ट भी उसको कहीं कहीं बोलते हैं, तकनीकी से पौधा बना करके भारत के सभी प्रदेशों में, और जो भी किसान हमसे आपूर्ति के लिए कहते हैं उन किसानों के यहाँ इसको देता हूँ, और जहाँ की सरकार हमसे मांगती है उस सरकार को भी मैं पौधा प्रोवाइड कराता हूँ। आज शैलेंद्र सिंह रघुवंशी एक साथ कई किस्मों की फसलों की उन्नत खेती करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही अलग अलग तरीकों से वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं। जो युवा खेती किसानी को घाटे का सौदा समझकर इससे दूर जा रहे थे, शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ऐसे कई युवाओं के लिए एक मिसाल हैं।
तो अभी आपने देखी एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान की कहानी। कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे एंथूरियम फूल की खेती के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे किसान परंपरागत कृषि से हटकर दूसरे फसलों की खेती करते हैं तो उनको मुनाफा मिलता है। एक ऐसी ही फसल है एंथूरियम फूल। अगर हमारे किसान एंथूरियम फूल की खेती करना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट उनके लिए अवश्य ही काम आएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमारे किसान एंथूरियम फूल की खेती कर सकते हैं। आजकल के समय में फूलों की खेती उद्योग का रूप ले चुकी है, कई देशों की आय का स्रोत बन चुकी है। भारत की जलवायु फूलों की खेती के लिए उत्तम है। यही कारण है कि कई किसान फूलों की खेती में रुचि लेने लगे हैं, जिस कारण हमारे देश में फूलों की खेती का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। देश विदेश के बाजार में कर्तित फूलों की मांग कई अधिक है। एंथूरियम अपने लुभावने आकार, विभिन्न प्रकार के रंग, ज्यादा समय तक तरोताजा रहने व आकर्षक बनावट के गुणों के कारण कर्तित फूलों की श्रेणी में आता है। बढ़ती मांग के चलते एंथूरियम को गमले में उगाया जा रहा है। एंथूरियम को संरक्षित खेती द्वारा पॉली हाउस में साल भर उगाया जा सकता है। एंथूरियम की खेती किसानों के लिए मुनाफा कमाने का अच्छा जरिया है। अपनी सुंदरता के कारण एंथूरियम फूल व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे इसके आकर्षक फूल और पत्तों के लिए उगाया जाता है। एंथूरियम की खेती आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में की जाती है। इसकी बढ़ती हुई मांग और संरक्षित कृषि के चलन से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि गमलों में एंथूरियम की व्यावसायिक कृषि बड़े पैमाने पर भारत के अन्य राज्यों में शुरू की जाएगी। पौध की तैयारी। भारत में एंथूरियम की पौध बीज से उगाना संभव नहीं है, इसलिए एंथूरियम की पौध को प्रयोगशाला में उत्तक संवर्धन तकनीक से तैयार किया जाता है। इस तकनीक में विदेश से लाई गई मूल पौध या मदर प्लांट को संवर्धित किया जाता है। मूल पौध के उत्तक से पौध प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। प्रयोगशाला में इस तकनीक के द्वारा एंथूरियम की स्वस्थ पौध तैयार कर ली जाती है। एंथूरियम की सफल खेती करने के लिए आपके इलाके का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होना अनुकूल है। इसके साथ ही एंथूरियम का विकास पूर्ण रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के ऊपर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि एंथूरियम की व्यावसायिक खेती आधुनिक उपकरणों वाले पॉली हाउस में की जाती है। लेकिन एंथूरियम की खेती के लिए पॉली हाउस का चुनाव अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के सुझाव से ही करें। पौध तैयार करने के बाद बारी आती है पौध रोपण की। रोपण के लिए मीडिया तैयार किया जाता है। ये मीडिया मिट्टी, कोकोपीट, खाद और थर्मोकोल को मिलाकर तैयार किया जाता है। एंथूरियम के लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जा सकता है। मीडिया को गमलों में भर दिया जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला से लाई गई पौध को गमलों में रोप दिया जाता है। रोपण के तुरंत बाद गमलों को पॉली हाउस के अंदर रख दिया जाता है। पॉली हाउस में गमलों में कृषि करने के लिए किसान एक आधार तैयार करते हैं। ये आधार जमीन से 2.5 फुट ऊंचा और कम से कम 32 फुट लंबा होता है। इस संरचना को तैयार करने के लिए सबसे पहले दोनों छोर पर लोहे के मजबूत खंभों को स्थापित किया जाता है। रुपाई के बाद
गमलों को पॉली हाउस के अंदर ट्रे में रखने के बाद फव्वारा सिंचाई कर दी जाती है, जिससे कि जड़ें मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ ले। फूलों को आने में 6 महीने का समय लगता है। एंथोरियम की कृषि में कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले सही प्रकाश की उत्तम गुणवत्ता वाले फूलों के लिए प्रकाश की तीव्रता को 18,000 से 35,000 लक्स के बीच निर्धारित करना होता है। प्रकाश के बाद दूसरी अहम भूमिका नमी की होती है। एंथोरियम के लिए 70 से 80% नमी की मौजूदगी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पॉली हाउस में एंथोरियम की खेती के दौरान फॉगर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। एंथोरियम के पौधों की सिंचाई के लिए स्वच्छ पानी बहुत आवश्यक है। सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी का EC 0.5 से कम होना चाहिए। एंथोरियम को प्रतिदिन पानी दिया जाता है, लेकिन एक खास बात को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि गमलों में पानी का ठहराव ना हो। इसके साथ ही हफ्ते में 2 बार इसके पौधों में खाद दी जाती है, जिससे कि पौधों का सही पोषण हो सके। एंथोरियम के पौधों में कीटों का हमला बहुत अधिक होता है। इससे बचाव के लिए हर 7 से 8 दिनों के अंतराल पर कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके पौधे पर घुन, थ्रिप्स और कमला कीट तथा जीवाणु जनित अंगमारी व जड़ सड़न जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करके इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही एंथोरियम के पौधे से पीले पत्ते व खरपतवार को हाथों से साफ कर देना सही रहता है। आने वाले समय में एंथोरियम की खेती किसानों के लिए अधिक मुनाफा देने वाली नगदी फसल साबित हो सकती है। तो एंथोरियम फूल की खेती से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट अभी आपने देखी। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से हमारे किसानों को अवश्य ही लाभ मिलेगा। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जो किसान हमें ईमेल के जरिए अपने सुझाव भेजना चाहते हैं वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम से हमारे किसानों को ज़रूर ही लाभ मिला होगा। तो फिलहाल के लिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।